हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ. ચાલો હવે મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 12 ને સમજી રહ્યા છીએ. અને ચેપ્ટર નંબર 12 ની વ્યક્તિને એવું શીખવે છે કે આપણે કોઈ વ્યક્તિની સેવા કરવી, અને તે પણ કેવી? સ્વાર્થ વગર, નિસ્વાર્થ સેવા. અને એના નામે આપણે નિસ્વાર્થ સેવા કેવી રીતે કરી શકાય છે મિત્રો, તે એક આ ચરિત્રની બનાવવાની શીખવે છે. એના નાયક એટલે हीरो कौन છે? પૂજા મેજર. इसलिए लेसन का नाम है चैप्टर नंबर 12 પૂજા મેજરની લગ્ની. ફરીથી પાછું યાદ દેવડાવી દઉં છું. લેખક છે જોસેફ મેકવાન. એમનો જન્મ ખેડા જિલ્લાના ત્રણોલ ગામમાં થયો. ક્યાં થયો હતો મિત્રો? ખેડા જિલ્લાના ત્રણોલ ગામ એમનો જન્મ થયેલો છે. અને એમનું વતન ઓળગામ. કયું હતું? ઓળગામ. ઓકે. અને સાહિત્ય પ્રકાર છે ચરિત્ર નિબંધ. મિત્રો આટલું આપણે શીખી લીધા પછી, આટલું જાણી લીધા પછી, લેસનની ઇન્ટ્રોડક્શન આગલા પીરિયડમાં આપણે કરી દીધું હતું. હવે મિત્રો આપણે આ લેસન સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે. પહેલું જ, વેશ બદલે શું થયું? પણ મન બદલવા જોઈએ. મિત્રો ગ્રામર આપણે જ્યારે કરવાનું છે ત્યારે આમાં બે સેન્ટેન્સ જોડાયેલા છે. વેશ બદલે શું થયું? પણ મન બદલવા જોઈએ. મિત્રો આ બંને સેન્ટેન્સો જે છે તે આપણને ગ્રામરમાં ખૂબ ઉપયોગ થશે. મિત્રો પહેલું જ સરસ મજાની વાત આપણે કરેલી છે. वेश बदले શું? यानी कपड़ा बदलने से कपड़े से कुछ नहीं होता है, પણ મન બદલવા જોઈએ. यानी अपनी दिमाग सोचने की आदत बदलनी चाहिए. नाम बदलिए શું છે? भाई नाम, बड़े बड़े नाम करने से कुछ नहीं होगा, भाई काम बदल. यानी काम करके दिखाओ आप, सिर्फ नाम करने से कुछ नहीं होगा. बराबर આવું પૂજા મેજર પોતે માનતા હતા. ઉલટભેર આ કડી ગવડાવનાર પૂજો મેજર સાલ્વેન્સન આર્મીનો અમલદાર. મિત્રો શોર્ટ આન્સર આવશે. સાલ્વેન્સન આર્મીનો અમલદાર કોણ હતો? તો પૂજા મેજર. જિંદગી આખી મિશનની સેવા ગાડીને, જિંદગી આખી મિશનની સેવા ગાડીને निवृत्ति થઈ એ ગામમાં આવ્યા. यानी रिटायरमेंट होने के बाद वो गांव में आते हैं. ત્યારે कपड़ा एक पेटी, यानी उनके साथ कपड़े की एक पेटी અને खप जोगा वासणों एक कोथળું, यानी उसको जितना जरूरत था इतना ही बर्तन उसके साथ लेके आते. આટલો જ એમનો સામાન જોઈ, यानी इतना ही उसका सामान देख जुनारा ने भारी अजब थयो, यानी देखने वाले को बहुत ही नवाई लगी. कोई के पूछ्યું खરું, यानी किसी ने पूछा भी था. મેજર કાકા સામાનનો ગાડો પાછળ આવે છે. મિત્રો આ સેન્ટેન્સને પણ આપણે વિરામચિહ્ન તરીકે જોવાનું છે, ગ્રામરમાં આવશે મિત્રો. ઓકે. मेजर काका सामान नो गाड़ो पाछड़ आवे छे. यानी मेजर को पूछते हैं कि इतना ही सामान है कि दूसरा कुछ पीछे आ रहा है? अलिया भाई, मेजर जवाब देता है, आज सामान, यानी जो है वो इतना ही सामान. हमारे बे मानस ने कितलू चाहिए? यानी उसको और उसकी वाइफ को, उनके बाल बच्चे थे नहीं. लाज ढांकवा लंगोटी ने पेट ढांकवा खलेड़ी. મિત્રો આ પદક્રમ સંવાદમાં આ ચેપ્ટર આપણે જોવાનું આવશે ત્યારે બરાબર જોજો. આ સેન્ટેન્સ માં અંડરલાઈન કરી દીધું છે. એ મોકળું હસી પડ્યા, યાની હસતે હુએ ઉन्होंने જવાબ દિયા. ત્યારે સાચો જવાબ સાંભળવા માંગનારો અચંબો વધી ગયો. યાની
અચંબો વધી ગયેલો. અમે જોયેલું, અમને દેખા. ગામમાં મિશનનો નવો માસ્તર આવે ત્યારે गाड़ू सामान लाव्यो हो, यानी गांव में कोई अगर मास्टर यानी टीचर तो सामान एक गाड़ो भर के लेके आता ने बदली में जतो होय त्यारे दौड़ गांव में शामिल थतो, यानी रिटायर होने के बाद इनके पास सामान बढ़ जाता है। કેટલાક ને અમે બબ્બે ઘડા ભરીને આવતા જતા એ જોઈએ, यानी किसी किसी को तो हमने दो दो बैलगाड़े भर के भी सामान हमने देखा। એટલે પૂંજા મેજરની સાવ ટાચી ઘરવખરી જોઈ, સાવ ટાચી એટલે ગૌથી કમ ઘરવખરી જોઈને વિચારનારાને લાગ્યું, એને સોચने वाले को लगा मानसમાં કઈ માલ નથી, यानी सब लोग उसकी बात करते थे कि इंसान में कुछ लेना नहीं है, जिंदगी आखी फोकटनी खर्च, यानी जिंदगी आखी फोकटनी खर्ची। હવે ખબર પડશે કેટલા વિશે 100 થાય, કેટલા વિશે 100 થાય એટલે પછી પાછળથી ખબર પડશે કે જિંદગી કેમ છે। પણ મેજર કાકા એવું તે કાંઈ નહીં, એ તો મૂકવા આવેલ બે જણની લઈને ચાલ્યા सीधा પોતા પડા। लेकिन मेजर काका को इसकी कोई असर नहीं थी, उन्होंने दो इंसान के साथ वो अपने सीधे घर पहुंचे। मुक्ति फौजना मंदिरनी अड़ोअड़ एमનું ભેડેરિયું घर, यानी मंदिर के बिल्कुल बाजू में अड़ोअड़ यानी बाजू में ભેડેરિયું घर मतलब कच्चा, वर्षों थी बंद पड़ियो रहे, यानी बहुत साल से बंद रहा। એ આવવાના થયા એટલે ભવાન કાકાએ વાડી લીપાવી સરખો કર્યો। ભવાન કાકા उसके बड़े भाई वाड़ी लिपावी सरखो करी राखे, यानी बहुत उसका जो कच्चा मकान था उनको साफ सफाई करके उनके बड़े भाई ने उसको तैयार किया। भवान काका एमना सगा मोटा भाई, यानी भवान काका कौन लगते थे? पूंजा मेजर के बड़े भाई। लागे એવું કે જાણે આ અલગારી પણ એમના જ આવવાનું આપ્યું હતું, यानी अलगारी પણ એટલે રખડપટ્ટી। આવ્યા એ જ સાંજે મેજર ભવાન કાકાને પૂછી, यानी जिस दिन आए उस दिन भवान काका मेजर काका को पूछते, भवान भाई एकाद माची बाची मड़ेगी? यानी माची का मतलब क्या होता है? छोटा सा खाट। हूँ तो हेठण सुई रहीश, यानी मैं तो नीचे सो जाऊंगा, पण उजमनी तो जोईशे। लेकिन उजम काकी को तो चाहिए, डोसीना हाड़का पोचा छे, यानी नीचे सोने में उजम काकी को दर्द होता है। भवान काका कई कहे पहला मारा बापुए पूछी नाख्यु, यानी भवान काका कुछ कहते इससे पहले मारा बापुए पूछी नाख्यु, ते मेजर आखी आ जिंदगी में बे खाटलानो भेद ना कर्यो तमे? मित्रों હવે આ સેન્ટેન્સ બોર્ડની એક્ઝામમાં 2 થી 3 વાર પૂછાયું છે। વિરામ ચિહ્ન તરીકે આ સેન્ટેન્સને બરાબર સુધારીને લખો, આવો પૂછવામાં આવશે મિત્રો, ત્યારે તમારે આને બરાબર લખવાનું રહેશે। ત્યારે તમે કમાયા શું? यानी आप कमाई गया। पेला हिंदुओ के छे एम रामनु नाम मास्तर, यानी क्या कमाया? राम राम भगवान का नाम नहीं कमाया। और पूंजा मेजर जिस प्रकार से भजन गाते इसी प्रकार से मोहला की है लगनिया रे सो संग प्रीत कराना,
प्रीत लगाना मैं प्रीत लगाना। इस प्रकार से हमेशा के लिए मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन, मैं तो गमे धरे हरे को गाने लगी। इस प्रकार से यहाँ पूजा में जब अपने भगवान में लीन हो जाते हैं, ईसु संग प्रीत लगा એવું કહે છે મિત્રો। અહીંયા બરાબર છે। एमना गीत में एमनी मस्ती टपकती थी। जिस प्रकार से वो भगवान में मानता था, इसी प्रकार से उसकी मस्ती टपकती थी। पर भगवान काका कहे आखी जिंदगी गीत गाया, सही है, कुछ कमाते नहीं है लोग, उसको क्या कहते हैं? आखी जिंदगी गीत गाया, हजू नहीं धरायो, फिर भी धराए नहीं है। बेकूका कहीं कमायो धमायो करो, दो पैसे कुछ कमाए कि नहीं? लोग ने तो एमआरएस सच, लेकिन गुंजा मेजर जो कमाया है वो हम लोगों ने नहीं कमाया है फ्रेंड। सच्ची कमाई वो है, लोगों को, सारे लोगों को दूसरे में इंटरेस्ट है। पाछड़ छेड़ो वाड़ी ने कोई तो જોઈએ नहीं। यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सेवा चाकरी करने के लिए दो चार पैसे चाहिए, इसके बारे में बोलते हैं कि भाई पाछड़ छेड़ो वाड़नार कोई तो જોઈએ ने, ये कया हिसाबे तने रड़से, किस प्रकार से आपकी सेवा करेगा। तमे आ को छो भवन भाई, तमे यानी ये आप कहते हैं होवे, यानी हाँ आ जता जीवतरे मारे वेट वेंढारवी पड़े छे। वेट वेंढारवी मतलब रूढ़िप्रयोग नो अर्थ छे, यानी आपकी सेवा चाकरी मुझे करनी पड़ती है। मने एम के तू कांक बे પાંદડે थयो हो, बे પાંદડે थयो, आर्थिक स्थिति सारी हो, बे પાંદડે थयो हो तो मारी इतनी माया होती, तुम कुछ पैसे कमाए होंगे, यानी कुछ आर्थिक स्थिति सारी थी, बे પાંદડે थयो। जो धारा को मैं एवी कसी अवड़खा राखी। मेजर काका क्या कहता है, जो तुम्हारा स्वागत, मैं एवो कई अवड़खा राखी ज तारवा वाळो ए बैठो छे, इसके प्रति भगवान की भक्ति, બધું એના ભરોસે, यानी सब ऊपर वाले के भरोसे। आ परवाळ वाळानी वेड़ा आवी त्यारे घर वखरी जे कई एकठी થઈ ती ए हाचू कहूं तो मने लजवती, इतना सामान भी मेरे को शर्म, કેવો માણસ હશે કે આટલા ઠેકાણા હોય તો શું જિંદગી જીવાય। આ પૂજા મેજર આવો વ્યક્તિ હતો। વેચી હાટીને મારી પાછળ આવો એમ નાયરેજ વાળાએ કહેલું ને એમ ગાતા ગાતા આ બધું એકઠું થયું, यानी यीशु का नाम लेते लेते इतना इकट्ठा हो गया मेरे को पता भी नहीं। ते हदुई वेची दीधो था, यानी सब तो वहां भेज डाला, जेने जेने जरूर होती एवा होने आली दी, यानी जिस जिसको जरूरत थी ये सबको दे दिया ने चालवा ज मांड्यो। तो पाछो वाड़ी ने सा हाथर जो, यानी भगवान का नाम लेते निकल ही पड़ा हूं तो फिर लौटने की जरूरत नहीं, मने जरूर हसे तो हालवा वाड़ो ये क्या नहीं बैठो, यानी मेरे को अगर जरूरत है तो मुझे देने वाला कहाँ नहीं बैठा। इस प्रकार से इस पैराग्राफ हम जरूर देख सकते हैं कि पूजा मेजर को उनके भगवान के प्रति कितना अटूट विश्वास। हारो तारे मांगो एमनी पाहे, हारो मांगो एमनी पाहे, हूँ जोऊं छू यीशु केवो हालवा आवे छे। क्या मांगने के लिए बोला था जो भगवान का के पास,
માછી માંગી थी वो ने જરાય માઠું લગાડ્યા વિના પૂંજ્યા મેજર પાછા વળી ગયા। बिल्कुल उन्होंने गलत लगाया नहीं। ने थोड़ी वार પછી પાછા આવીને કહે લ્યો ભવાનભાઈ તમે કહેતા હતા એમ એને ખાટલું આપ્યું। भगवान भाई को कहते हैं कि मैंने भगवान के पास खाट मांगा उन्होंने दे दिया। थोड़ा झाड़िया काढ़वा माड़िए चढ़ियो तो हाँ खाटलो मळ्यो, यानी थोड़ा साफ सफाई करने के लिए वहां पहुंचा तो मेरे को ये खाट मिला। તમે જરાક હલાવી દો હું કાથીનો વેત કરી લઈશ। हलवी दियो मतलब यानी पहले के जमाने में लकड़ी का खाट आता था, एक दूसरे के अंदर ज्वाइंट होता था। इस प्रकार के खाट फोल्डिंग था और जो फोल्डिंग खाट होते हैं उसको ज्वाइंट करना पड़ता। पांचेक दाड़માં એમનું ઘર ઠરીઠામ થઈ અને પાંચેક દિનની અંડરલાઈન કરજો મિત્રો। હવે આપણે આ વિરામ ચિહ્ન તરીકે અને પ્રત્યય તરીકે આ સેન્ટેન્સને આપણે લેવાનું છે। જણમાં કોઈ ઝંઝાળ નહીં यानी कोई लड़का या लड़की उसको था नहीं, होता मात्र बे जण। कितने थे? दो। वंशवेलाનો કોઈ વલોપાત यानी कोई बच्चा होने की उम्मीद भी नहीं थी। શું ખાય ને શું પીએ એની કોઈને ખબર नहीं। क्या खाते हैं क्या पीते हैं किसी को इसके बारे में कोई पता नहीं। पूरा संत मैथ्यूस नो माणस, पूरा भगवान का इंसान, આકાશના પંખી છે। વાવવું લણવું ને એકઠા કરવાની કોઈ પળોજણી જ નહીં। सांझे हमें छोकरा ने एकठा करे यानी शाम को हमको इकट्ठा करते हैं। शू वार्ता मानी कोईक बात मांडे। मित्रों હવે આ જે છે એ સંયોજક તરીકે વાક્યનો ઉપયોગ કરો એમાં આવશે। બાંધી ડળીનો બેઠા ઘાટનો એનો ભરાવદાર દે यानी सब बच्चे को इकट्ठा कर देते और स्टोरी सुनाते। फूलेला पोपचा नीचे भाव झरती चश्मा विहोणी સાચોકલી આંખો ધડ સાથે જડી દીધું હોય એવું ડોકું ને ગોળમટોળ મોં, જાડા ધોતિયા પર લાલ કોટના ખભે 3 તારા, પાસેનો એસ માર્કો यानी वो आर्मी में अमलदार था तो इसी प्रकार से उसको स्टार दिए जाते थे और ये स्टार उनके ऊपर थे। एमने सोल्वंसन करता है शाब्दा, सोल्वंसन का एस शाब्दा રહેવાનો ભાવ વધારે વ્યક્ત કરતો। यानी अगर किसी ने यूनिफॉर्म पहना होता है तो उसको उसकी फर्ज की जिम्मेदारी उसके ऊपर निर्भर रहती है। इसी प्रकार से पूजा मेजर ने भी उनका अगर यूनिफॉर्म पहना होता है तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका एहसास कराती। ગામમાં આવ્યા પછી થોડાક દિવસ એ સૌના વિચાર વ્યવહારથી પરિચિત થયા। यानी गांव में आने के बाद सब लोगों से मिले और सब लोगों के साथ उनका परिचय हुआ। पंचना चलणનો તાગ મેળવ્યો। તાગ મેળવવો मतलब जानकारी प्राप्त की। મિશનની 3 ધૂળીશાળાઓ ચાલતી। મિત્રો ધૂળીશાળા એટલે શું? तो कि पहले के जमाने में कोई बेंच नहीं थी, कोई स्लेट भी नहीं थी, कोई पेन नहीं था। तो क्या करते थे लोग? मिट्टी की धूल लेके जाते थे घर से और एक नीचे बैठ जाते थे और सामने वो धूल बिछा देते थे और धूल के ऊपर लकड़ी से लिखते थे। 1 2 3 जो भी लिखना है वो लकड़ी से धूल में लिखते थे, फिर मिटा देते थे, फिर ऊपर लिखते थे। उसको हम कहेंगे धूले निशान।
ત્યાં નજર નાખી આવ્યા. ભવાન કાકાની સીમ પણ ફરી આવ્યા, પણ એમનો જીવ પાદરમાં આવેલ માણસ, તળાવ સમી, બારેમાસ પાણી રહેતી ઊંડી ખીણ અને પડતર જમીન પર ખોડાઈ રહેતો. પડતર જમીન કે ઉપર ખોડાઈ રહેતો. ખૂબ વિચાર્યા પછી એક દિવસ સાંજે એ વાસીનો દોસ્તો બેસાડવા ભવાન કાકા પાસે. वासी दोस्तों मतलब जो सफाई करने का था, उसके अंदर जो लकड़ी का हाथा आता है वो ભવાન કાકા પાસે આવ્યા. આ વાસી શું કરવી છે તમારે? મિત્રો, આ આપણે વિરામ ચિહ્ન તરીકે સેન્ટેન્સ પૂછાઈ ગયેલું છે. મિત્રો, જેટલું જેટલું અંડરલાઈન કરું છું તમારી નોટબુકમાં આ બધા લખી દેવાના છે અથવા અંડરલાઈન તમારે કરી દેવાની છે. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે વાસી શું કરવી છે તમારે? કોદાળો પાવડો મળી ગયા છે. વાસી થોરિયા વાઢીને વાડોલા કરવા માટે પાદરની પડતર જમીનમાં આંબા વાવવા છે. ભવાન કાકા આવું કહે છે કે તમારે આ શું કરવું છે? તારે આવો આવવા છે? તમારું તે ભમી ગયું છે. ભમી ગયું મતલબ તેરા દિમાગ ઠिकाने नहीं है. ત્યાં પાદરમાં આંબા રહેતા હશે, यानी वहां आम के पेड़ होंगे. कशु मड़तर रहे एवो धंधो करो ने, यानी कुछ 2 पैसे कमाए ऐसा कुछ काम करो. 25 રૂપિયા પેન્શનમાં અમારો બેનો ગુજારો થઈ રહ્યો છે. મિત્રો, પેન્શન કેટલા રૂપિયા મળતું હતું? 25 રૂપિયા. જોયો? 25 રૂપિયા. જાજાની અબળખા નથી, यानी ज्यादा पैसे मेरे को चाहिए नहीं. 1 ટન ધરાઈને ધાન મળી રહે પછી મારે શી ચિંતા? 1 ટાઈમ ખાવાનું થયું, मारे किसी चिंता नहीं. इस प्रकार का इंसान था. तो पगवाड़ी ने घर में बेहो. क्या कहते हैं? तो पगवाड़ी ने घर में बेहो, ऊपर वालों नाम लियो पण खोटा लोही उखाड़ा ना. कौन कहे छे? कौन कहता है? भगवान. शू कहे छे कि भाई तो घेर में बस, भगवान नाम ले, लोही उकाड़ा न करो. तमे तो जिंदगी आखी झाड़वामां काढी ने मने केम आम दखावो छो? भगवान काका को कहते हैं भाई तमे तो आखी जिंदगी झाड़वामां काढी नाखी ने मने शा माटे आवी रीते तमे मारा पर गुस्से थाओ छो? मारो हाच्यू मने कशुं लेखे नथी लाग्युं. लेखे लागो मतलब कोई काम आया नहीं. तमारा आंबा नहीं उछरे, नहीं उछरवा दे लोग. भगवान काका पूंजा मेजर को कहते हैं कि भाई आपके आम के पेड़ को होने देंगे नहीं. थोड़ा झाड़ थया तो आ पादर में छायो था. यानी क्या समझते थे ने गामना छोकरा फળ ખાય, मारे અહીં પણ થોડાક રોકવા છે. यानी क्या कहते हैं? थोड़ा झाड़ थाय तो पादर में छाया था. यानी इसकी क्या इच्छा थी आम के पेड़ लगाने के पीछे कि भाई थोड़ा छाया रहेगा और गांव के बच्चे लोग उसके फल पाएंगे. यानी झालोद में जो उन्होंने आम के पेड़ लगाए थे वे उसके ऊपर आम के फल बैठेंगे. इस प्रकार से यहाँ भी मेरे आम के पेड़ लगाने हैं. फ्रेंड, यहाँ हम रुकते हैं. पूजा मेजर की क्या इच्छा थी वो हमने जान लिया. पूजा मेजर को लोग क्या कहते हैं वो जान लिया. उनका पेंशन कितना था? 25 रुपया, वो भी हमने जान लिया. उनके बड़े भाई का नाम क्या था? भगवान भाई, वो भी हमने जान लिया. उसके पत्नी का नाम क्या था? विजमकर की, वो भी हमने जान लिया. फ्रेंड, जितने जितने प्रत्यय लगते हैं, विराम चिन्ह लगते हैं, संयोजक है, इतनी सारी बातों को हमने देख लिया. यहाँ हम रुकते हैं. ओके फ्रेंड, टेक केयर, गुड बाय.